So good evening everyone, and first of all many congratulations to all of you for clearing CS Executive, which is the most challenging level and the most difficult level for every CS aspirant. जितने भी बच्चे CS करने का ड्रीम करते हैं उनका जो सबसे बड़ा हर्डल है वो CS एग्जीक्यूटिव है, and that you guys have comfortably clear. So good to see, and now we are just one step behind of being a qualified company secretary and adding the prefix CS before our name. So today we are here to discuss about CS professional program June 2024, and that too under the new syllabus. Now CS structure we all are aware of that. Just to give a brief of that the first level is called CS CET level, which you have already cleared. The second is called CS executive, जो आपने अभी complete किया है. The most important, the most challenging level which you have already done, and that too very successfully. इसके बाद आता है CS professional level and your training. Now training structure क्या है? You have a 1 month EDP, that is called Executive Development Program, and 21 months practical training. And once you are done with your CS professional and your training, फिर आपकी last training आती है, that is called CLDP, that is Corporate Leadership Development Program. And once you are done with that CLDP, you get your dream membership number. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या चीजें ऐड किया है? Because you guys are already done with your CS executive, so you are aware of the same, that there is something called 1 day mandatory orientation program, जिसमें इंस्टीट्यूट के representatives are going to guide you that what is the scope of CS course, what is the opportunities after that, and then there is something called pre-examination test, whereby you have to clear pre-examination test of each and every subject before appearing for your actual examination. अब अगर आप इंडिया के किसी भी क्लासेस में जाओगे ना, those who are teaching CS all 3 level, so they will say that we are teaching at all 3 level, the same we do at Provings, but what we do extra, that we want to do some true value addition in the life of every student, and that is where we help our student to be placed in top notch companies and firm. अब ये जो हमारे फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट होते हैं, a lot of student ask me कि सर हमको ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद या फाइनल का एग्जाम देने के बाद? तो बच्चों आप, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इंडस्ट्री वांट, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, बिग फर्म्स हैं, दे वांट कि एक्चुअली बच्चा जब भी आए ट्रेनिंग के लिए, ही शुड बी इन अ पोजीशन टू कंट्रीब्यूट 100% टुवर्ड्स द वर्क, बिकॉज इट्स एक्चुअल ऑन जॉब ट्रेनिंग है आपके लिए. तो यहाँ पे corporates don't want you to take leave on account of exams or on account of classes. And secondly, as a company secretary, you guys are the future corporate lawyers, okay? So आपको drafting skill बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका understanding towards restructuring transaction अच्छा होना चाहिए, which something you are going to study at professional level. So it is always advisable to first give your 100%. एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है, उसी मोमेंटम से अपने को प्रोफेशनल क्लियर करना है. प्रोफेशनल का एग्जाम पूरी ताकत से एग्जाम दो, एंड एग्जाम के बाद अपना ट्रेनिंग चालू करो. अब यहाँ पे हाउ प्रोविंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज देखो आपने प्रोफेशनल का पहुंच गए हो, आपने प्रोफेशनल एग्जाम दे दिया, दैट शोज दैट यू हैव टैलेंट. बट सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा, आपका टैलेंट सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए, एंड दैट इज वेयर Provings, with our industry contact with top-notch companies and firm, we are going to send your CVs and resume to the top-notch companies and firm, arrange your interviews, but we don't interfere in the selection process. We want you to get selected based on your own merit. But ये हम कैसे करेंगे, that's something we'll understand over a period of time. But objective बताने का ये है कि अगला 1 साल आपको जम के पढ़ाई करना है, the next 9 months एग्जाम 1 शॉट में क्लियर करना है, एंड देन सक्सेस आपके ही है. क्लियर? तो व्हाट इज द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर? देखो आपका जो पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में है. द फर्स्ट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड इज 21 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड देन वंस यू आर डन विद दिस ट्रेनिंग एंड योर फाइनल CS प्रोफेशनल एग्जाम, आफ्टर क्लियरिंग द सेम यू हैव अ कॉर्पोरेट CLDP, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ये एक 1 मंथ की ट्रेनिंग है, दैट्स समथिंग यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग योर 21 मंथ्स ट्रेनिंग. अब इसमें 15 डेज ऑफलाइन होता है, 15 डेज ऑनलाइन होता है. कोविड के टाइम पे पूरा ऑनलाइन था, बट नाउ पोस्ट कोविड इट इज अगेन बैक टू द ओरिजिनल प्लान, एंड दैट इज वेयर द बच्चे पूछते हैं कि सर ये ट्रेनिंग कब करनी चाहिए. सिंपल वर्ड्स में आपको ये ट्रेनिंग करनी है बिफोर यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप. अब
इंटर्नशिप अपने को कब करनी है? इंटर्नशिप अपने को करनी है एग्जाम देने के बाद। तो अगर अभी सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम 10th, तो अगर अभी आपके पास ऑप्शन है टू स्टार्ट टू डू द 15 months ऑफलाइन, देन डू दैट थिंग। अगर नहीं है, बिकॉज दैट इज वेयर यू हैव टू चेक विद द इंस्टीट्यूट वेदर द बैच इज अवेलेबल और नॉट, बट वंस द क्लास स्टार्ट, उसके बाद ये 15 months का 15 days का ब्रेक मत लेना, बिकॉज दैट इज कंप्लीट डे की ट्रेनिंग हो जाती है, सो यू विल बी मिसिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर। सो आइडियल टाइम होता है एग्जाम के बाद। अगर अभी है ऑप्शन अवेलेबल, यू कैन डू दैट थिंग। अगर नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत करो, एग्जाम देने के बाद हम लोग ये ट्रेनिंग करेंगे। एंड ये ट्रेनिंग के बाद विल बी गोइंग फॉर 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अच्छा, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कहाँ कर सकते हो? तो यू कैन डू इन एनी लिस्टेड कंपनी, यू कैन डू इन एनी प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म, एनी लॉ फर्म, मर्चेंट बैंकर, इंश्योरेंस कंपनी। इंस्टीट्यूट ने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया, डिपेंडिंग अपॉन आपको अपना करियर प्रॉस्पेक्ट कहाँ दिखता है, उसके हिसाब से आप 21 months ट्रेनिंग करोगे। एंड देन after completing these two training structure and your professional exam, you will go to the last training that is to be called as CLDP, Corporate Leadership Development Program, and in that after you complete this CLDP you get your dream membership number। अच्छा, बच्चे मेरे से ना पूछते हैं कि सर ट्रेनिंग जो है वो फर्म में करना चाहिए या कंपनी में करना चाहिए? तो गाइज आई टेल यू, मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ। आई डन माई ट्रेनिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड before my training got completed, I got the job offer from the same company and that was my first job also। So it purely depend upon कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। एक चीज देखना कि अगर कंपनी में जाते हो so it should be an active company, मतलब जिसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शंस हो रहे हो, मर्जर, फंड रेजिंग, that is where you are going to learn a lot। or if you are going a practicing firm also, that practicing firm should be a versatile firm doing a lot of variety of work, because सिर्फ routine compliances will not lead to development of your understanding of the core functioning of the CS। so आप फर्म में जाओ या कॉर्पोरेट में जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां पे आपको सीखने को मिले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो 21 months ट्रेनिंग है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रू फंक्शनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर? अब कट ऑफ डेट क्या है ना? रजिस्ट्रेशन कब करना है? हम लोग एग्जाम देने वाले हैं June 24 में। सो अपने लिए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करने का लास्ट डेट है 30th November। सी टाइम है अपने पास, बट जब हमने क्लियर कर लिया है तो इट्स बेटर टू रजिस्टर विद ICSI एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज वंस यू आर रजिस्टर विद ICSI देन ओनली you will get your module, then only you will be eligible for 1 day mandatory orientation program and so on। इसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, अच्छा एक चीज देखिएगा, रजिस्ट्रेशन पूरे CS प्रोफेशनल का होता है, किसी ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आपको अगर एक ग्रुप का एग्जाम देना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट है 25th March, एंड दैट बाय दैट टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, एंड अपना जो एक्चुअल एग्जाम होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st June, व्हिच मींस दैट वी आर इन द मंथ ऑफ August, we have precisely September, October, November, December and 5 months, precisely 9 months in our hand, and ये 9 months more than sufficient है for clearing entire CS professional in one shot। clear? अब नया स्ट्रक्चर है क्या? देखो, नए स्ट्रक्चर में ना, अनलाइक ओल्ड स्ट्रक्चर जिसमें टोटल 9 पेपर्स थे डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल, नए स्ट्रक्चर में टोटल 7 पेपर्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझना कि नया स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है या छोटा है, पोर्शन अंदर काफी बड़ा कर दिया है। अब मॉड्यूल 1 में, which is your group 1 or module 1, you can say it is comprising of 4 papers, that is environmental, governance and social, then drafting, pleading, then compliances and due diligence and audit, and then there is something called elective 1 which is an open book paper and इसमें 4 elective paper है जिसमें आपको एक पेपर सेलेक्ट करना है। Then module 2 is comprising of 3 papers, out of which is strategic management and corporate finance। ये strategic management क्या है? जो हमने एग्जीक्यूटिव में SM पढ़ा था ना, अब एग्जीक्यूटिव में अंडर न्यू स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव से SM निकाल दिया गया है और उसको प्रोफेशनल में डाल दिया गया विद मोर एडवांस टॉपिक। देन यू हैव अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, एंड देन यू हैव अ इलेक्टिव 2 जिसमें 5 इलेक्टिव का ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने दिया है, जिसमें से अपने को एज अ स्टूडेंट अपने को एक सेलेक्ट करना है, एंड बोथ द इलेक्टिव्स आर ओपन बुक एग्जामिनेशन। अच्छा, आपको हर एग्जाम में नीडलेस टू से
आपको हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना बच्चे में से पूछते हैं कि सर कौन सा इलेक्टिव सेलेक्ट करें। देखो, आई गिव यू वेरी रैशनल थॉट प्रोसेस। जो आपका इलेक्टिव 1 है ना, जिसमें अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें ना अपना जो 4 ऑप्शन है उसमें देखो, एक है CSR एंड सोशल गवर्नेंस, दूसरा है इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, थर्ड है IPR एंड फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें CS से रिलेटेड क्या है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी ना इसमें चारों में कुछ खास दम है नहीं, एंड आई टेल यू जो रेलिवेंट है ना वो CSR यू कैन टेक द मोस्ट रेलिवेंट, और IPR द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। Why internal forensic audit is not very relevant for a CS professional aspirant? देखो, अगर आपको फॉरेंसिक ऑडिटर बनना है ना तो यूएस में एक एक्ट होता है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, ओके। सो यू नीड टू बी FCPA रजिस्टर्ड क्वालिफाइड मेंबर, which again by learning this thing will not help a company secretary to that great extent, okay. Second, artificial intelligence, though it sounds very fancy and sounds very good, बट AI जो है ना ये सॉफ्टवेयर्स का काम है जो डेवलपर्स करते हैं। अगेन क्वेश्चन खुद से पूछोगे, क्या आप अपनी बिजनेस अगर चालू करते हो तो क्या आप सॉफ्टवेयर किसी कंपनी सेक्रेटरी से बनवाओगे? आंसर इज नो। यू विल ऑलवेज हायर अ सिस्टम एक्सपर्ट, यू विल ऑलवेज हायर अ डेवलपर। सो अगेन ये दो सब्जेक्ट ना उतना रेलिवेंट नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू द IPR इट्स अ गुड सब्जेक्ट, बट अगेन IP अगर मैं ट्रेडमार्क एजेंट की बात करूं, या जो IP एजेंट होते हैं दे आर रजिस्टर्ड विद IP अथॉरिटीज। तो अगर आज कॉर्पोरेट में कोई कॉपीराइट इशू हो जाए, ट्रेडमार्क इशू हो जाए, दे विल ऑलवेज हायर द IP लॉयर्स। सो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज CSR, दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट। क्यों रेलिवेंट है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये एक्सटेंशन ऑफ पेपर 1 है। अपना पेपर 1 क्या था? दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव 1, ये गवर्नेंस जो है वो वहां से एक्सटेंड होता है। तो प्रोफेशनल में जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो आपको सप्लीमेंट करे एंड आपके टाइम बचाए, और आप जिससे कि ज्यादा मोर एंड मोर रिविजन कर सकें। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट एज इलेक्टिव 1 is CSR and social governance. With respect to elective 2, now there are 5 options being given. Without any single paisa doubt, select IBC. Now why IBC? I show you that thing also. देखो आपका ना मॉडल 2 का सेकेंड पेपर देखो। अब मॉडल 2 का सेकेंड पेपर जो है दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ये जो इंसॉल्वेंसी है ना यहाँ पे आप IBC पढ़ने वाले हो, कंप्लीट कोड पढ़ने वाले हैं। एंड इलेक्टिव 2 में जो IBC सब्जेक्ट है वहां पे आप IBC की केस स्टडी पढ़ने वाले हो। एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, IBC प्रैक्टिस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट जितनी भी लीडिंग लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, जितनी भी लीडिंग कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन IBC प्रैक्टिस, जहां पे कंपनी सेक्रेटरीज एंड लॉयर्स की बहुत ग्रेट डिमांड है। सो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट area for practice for all of you, and area precisely that is IBC, which is growing very fast. So elective 2 में तो without any single paisa doubt go for IBC only. So I believe this part is absolutely clear. So now which class to join? Now I never talk about competition. What I am going to talk about कि हम आपको यहाँ पे प्रोविंस में कैसे पढ़ाने वाले हैं, what will be our approach, what is our strategy, और हमने और भी बहुत changes कर दिया है। And every change is aimed only with one purpose, and that too to bring true value addition in the life of CS student. मेरा एक ही विजन है, इंडिया में बच्चा CS बोले ना, CS क्लासेस बोले तो उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आना चाहिए, प्रोविंस, और उसी विजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। And that's where we have targeted all 5 areas जो एक बच्चे के दिमाग में होता है while student decide to join any classes. The first is faculty, second is teaching model, third is study material, fourth is value-added services and fifth is fees. तो आपको इन पांचों चीजों का complete guidance देने के लिए we are here together, and the first is team Provings, and I feel it's a matter of great pride for me that I am leading a team which is the most qualified CS team across Bombay. In fact, it is one of the most qualified CS team across India. मुंबई में तो कोई क्लासेस हमारी टीचिंग टीम के एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन को मैच ही नहीं कर सकता।
and with due regard to everyone, but in competition those who are teaching or actually are old student, so the quality of the faculty is the most important factor for proving, and that's where I myself is going to be there. I'm a company secretary and law graduate, and being in teaching for more than 15 years and being in industry for more than 16 years, worked with Deloitte, Amarchand, Radio Mirchi, Times of India. Then Sagar Madan sir is going to be there. He's a CS, LLM, CFA, and being in teaching for more than 20 years and being in industry practice for more than 22 years. He is a Supreme Court lawyer, precisely. He is a Supreme Court member. आपको पता है बच्चों that Supreme Court में जो practicing lawyers होते हैं, those who are AOR होते हैं, now advocate on record, now it's a very reputed thing. बहुत कम lawyers होते हैं जो Supreme Court practicing lawyer होते हैं, and if a person being in practicing in Supreme Court for the last more than 20 years, आप उस बंदे की नॉलेज को समझ सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर समझ सकते हो. आई टेल यू, जब सागर मदन सर आईबीसी पढ़ाते हैं ना, तो वो आपको ना किताब से बहुत ज्यादा पढ़ाते थे, बिकॉज उन्होंने वो प्रैक्टिकली आईपी हैं. ही इज रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो जब वो आपको आईबीसी पढ़ाते हैं ना, तो ही कैन गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इन डेप्थनेस व्हिच नो अदर फैकल्टी across Bombay can even think, because that does not come from book, that comes from complete practical practical exposure. SR shipping का IBC sir ने किया था, so he was a part of a lot of big deals, and those experiences he is going to share while he was teaching his subject. Then Hema ma'am, now Hema ma'am is a practicing company secretary, being in teaching for more than 10 years. She is a company secretary and law graduate. Then Vishwanath sir, again very qualified chartered accountant by qualification, and being in teaching for more than 8 years, and he is a visiting faculty to all the top colleges across Bombay, whether it's being Mithi by Narsi Monji, he is a visiting faculty to all the top colleges. Then Tejas Bhatt sir, again a very skillful faculty and amazing faculty. मतलब मैंने being in teaching for more than 24 years, और मैंने तेजस सर से ज़्यादा ना एंटरटेनिंग फैकल्टी नहीं देखी आज तक. ही कैन मेक एनी सब्जेक्ट एंटरटेनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडेबल. एंड Dipesh sir, now Dipesh sir is a CA by qualification and being in teaching for more than 22 years, having specialization towards the accounts and the costing and the FM subject. And why Dipesh sir is is being a part of the CS professional team, because आपके प्रोफेशनल में ना एक टॉपिक ऐड हुआ है वैल्यूएशन. क्लियर? अब वैल्यूएशन ना एक डेडिकेटेड पार्ट दिया गया जिसमें आपको ना एफएम के एडवांस क्वेश्चन दिए गए. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे थोड़ा एफएम पढ़ा हुआ है जिसको एनपीवी बोलते हैं, कि पीवी इनफ्लो पीवी आउटफ्लो का जो डिफरेंस है दैट इज एनपीवी एंड एनपीवी नीड टू बी पॉजिटिव. अब उस एनपीवी के बेस पे अपने को मर्जर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं. Secondly, valuation of shares and goodwill के advanced question आ गए हैं. So I thought it's better that we should have a qualified chartered accountant having expertise towards the finance and the FM side to take that portion. Then Juhi ma'am, a very young qualified faculty, being a ranker at CS level, being a ranker at graduation level, and being in teaching for more than 5 years. So this is our team for CS professional. Apart from that, the discussions are going on with few more faculties, very qualified and experienced faculty, which is likely to join us on board very soon. But currently, if I have to give you subject-wise bifurcation, because a lot of students ask me कि sir कौन सी faculty क्या पढ़ाने वाला है, तो I give you a complete subject-wise bifurcation. जो paper 1 है ना, now that is comprising of governance as a subject. देखो governance past 65 marks का है, एंड ये जो गवर्नेंस है ये आपके इलेक्टिव 4.1 से देखो मैच हो रहा है, तो गवर्नेंस का काफी बड़ा पोर्शन है. देन यू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट. अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये एक चैप्टर है एंड 20 मार्क्स का आता है. नाउ दैट 20 मार्क्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन यू हैव अ एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग व्हिच इज कंप्राइजिंग ऑफ 15 मार्क्स. सो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टेकन बाय three parts are there and 3 faculties are there. So Sagar Madan sir will be taking, Tejas sir will be taking, and Juhi ma'am is going to take this subject. देन ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट. देखो ड्राफ्टिंग जो है ना ये कंप्लीटली लॉयर्स गेम है. इस सब्जेक्ट में हम लोग समझेंगे कि एक एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है. इस सब्जेक्ट में हम लोग समझेंगे कि एफआईआर ड्राफ्ट कैसे होता है, पेटिशन ड्राफ्ट कैसे होता है, डिफेंस ड्राफ्ट कैसे होता है. तो ये सब्जेक्ट मैं आपको सब पढ़ाऊंगा. एंड इन क्लास हम लोग आपको नोट्स तो दिए जाएंगे पूरे सब्जेक्ट के,
बट इन क्लास हम लोग 100 से ऊपर ड्राफ्ट बनाते हैं, बिकॉज ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट आप सीखोगे तब जब आप लिखोगे। तो 100 से ऊपर ड्राफ्ट हम लोग क्लास में बनाने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द एंटायर नोट्स फॉर एंटायर सब्जेक्ट, आपको 300 पेज की एक बुक बनवाता हूँ मैं, और पूरी बुक अपना हम ड्राफ्ट बनाते हैं। और ये जो इतना प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ना, राइटिंग प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प यू टू गेट अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि अब इंडिया का दुनिया का कोई भी एग्रीमेंट आ जावे ना, आप उसको बना सकते हैं। और यही हम लोग करने वाले ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में। देन इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कंसल्टेंसी वर्ड जैसा है। फॉर एग्जांपल इफ यू बीइंग अ मर्चेंट बैंकर, आपको ड्यू डिलिजेंस करना है कि कोई मर्जर हो रहा है तो मर्जर बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चेकलिस्ट हो गई है कि नहीं, दोस थिंग हैव टू बी डन मोर ऑन द प्रैक्टिस साइड। एंड इसलिए हेमा मैम, हु इज द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जूही मैम, नाउ दे आर गोइंग टू टेक दिस सब्जेक्ट। देन इलेक्टिव में CSR, एज आई सेड दैट CSR एंड ये इलेक्टिव 1 जो है आपके पेपर 1 से काफी रिलेट हो जाता है। CSR इज समथिंग दैट इज सेक्शन 135 व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कंपनी लॉ सब्जेक्ट, तो ये विश्वनाथ सर इज गोइंग टू टेक along with सागर मदन सर। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, वो 40 मार्क्स का है, एंड बिकॉज इट्स SM, सो तेजस सर विल कम। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब हम लोग उसके और एडवांस वर्जन को पढ़ेंगे। हमने अभी तक इंटरनेशनल इंडियन लिस्टिंग पढ़ा है कि इंडिया में लिस्टिंग कैसे होती है, अब हम इंटरनेशनल लिस्टिंग नॉर्म्स पढ़ेंगे। सो दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टेकन बाय तेजस सर एंड माई सेल्फ। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, इसमें जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट है वो 40 मार्क्स का है, जिसमें हम मर्जर, टेक ओवर, बायबैक, कैपिटल रिडक्शन पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैल्यूएशन पार्ट जो है ये दीपेश से पढ़ाएंगे, बिकॉज दिस इज अ पार्ट which basically talks about that how to do valuation of shares and goodwill कैसे होगा। then आपका FM से NPV के हिसाब से merger calculation कैसे होता है, so Dipesh sir will take this part। and then IBC, that is insolvency and bankruptcy, ये सागर मदन सर लेंगे, sharing his own practical exposure and understanding of this subject। and because Sagar Madan sir IBC ले रहे हैं, so elective 2 which is again an extension of IBC is also going to be taken by Sagar Madan sir। so these are the faculties। now with respect to teaching model, अब देखो अब हमारा teaching model क्या है, so we have a face to face coaching also as well as we have a online coaching also। face to face for CS professional, we are having batch at Borivali, Dadar and Mulund। Borivali and Mulund, it's being there for almost more than 2 years now, and it's almost 3 years now, and Borivali and Mulund, and now Dadar we are starting। दादर में अपना एग्जीक्यूटिव का बैच अपना चालू हो गया है, एंड वी आर स्टार्टिंग विद प्रोफेशनल बैच आल्सो एट दादर। ओके, नाउ दिस इज द फेस टू फेस। विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन, वी हैव अ लाइव एट सेंटर एज वेल एज लाइव एट होम। लाइव एट होम क्या होता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सेम। लाइव एट सेंटर क्या है, दैट दिस इज समथिंग वी आर डूइंग इन एसोसिएशन विद वी क्लासेस। अब वी क्या है, वी बेसिकली नॉर्थ की जो सबसे रेप्यूटेड सीए फैकल्टीज हैं, प्रवीण शर्मा सर, पंकज गर्ग सर, ना उन्होंने मिलके एक एसोसिएशन ऑफ फैकल्टीज बनाया, एंड दैट इज वेयर दे हैव अ लाइव एट सेंटर। तो उनके सेंटर्स अक्रॉस इंडिया हैं जहाँ पे लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं, उनके लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्ड लेक्चर्स होते हैं। एंड आफ्टर नोइंग अबाउट प्रोविंग्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आवर टीम, आवर अप्रोच, आवर रिजल्ट, तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने प्रवीण शर्मा सर से मीटिंग हुई, and they allow us that come do the entire CS coaching in all 80 centers। so we are now associated with V with respect to live at center। तो उनके जो भी 80+ सेंटर अक्रॉस इंडिया हैं वहाँ पे CS अब हमारा जाएगा। we are developing this thing, it will take me around the next 6 months to 1 year to develop at all center, but once this thing being achieved, which is 100% going to achieve, then Provings is going to have a presence on pan India basis। so this is how we have the coaching, and then we have a recorded also with respect to pen drive, mobile application and Google Drive। clear? अब हमारा face to face बैच कब चालू होने वाला है? with respect to CS professional, now batch is going to start from 10th of September, okay, for both module। अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर हमको एक मॉड्यूल देना चाहिए या दोनों मॉड्यूल देना चाहिए। देखो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ना देयर कैन बी प्रोबेबिलिटी कि आपने एक मॉड्यूल करके दिया हो और आपका क्लियर हो गया,
बट देखो एग्जीक्यूटिव में ना आपके पास टाइम कम होता है। मतलब ये है कि जब आप एग्जीक्यूटिव में आप जब एग्जाम देते हो ना, आपके पास इट्स यू हैव लेस देन 6 मंथ्स टाइम, वेदर यू काउंट फ्रॉम एनी CSET, आपके पास टाइम हमेशा 6 महीने से कम होता है। एंड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम CSET टू एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़ा गैप हो जाता है। एंड देयरफॉर बच्चे को उस गैप को समझना कि भाई ये गैप कितना बड़ा है, और प्रिपरेशन करने में स्टूडेंट नीड मोर टाइम, एंड दैट्स वेयर lot of students prefer to go with module wise. But now professional is an extension of your executive. Your understanding of the subject has already developed, and now we are going to study the advanced version of the same, and we have 9 months time. So it is always advisable to go for both module and get all India rank, and this is very much achievable. And I tell you, rank at all levels is very good, but a rank at professional level is being acknowledged by industry a lot. इसलिए देखो, आप जब जॉब मार्केट में जाओगे, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे फॉर योर ट्रेनिंग और फॉर फर्दर जॉब, आप जब पहले जॉब के लिए जाओगे ना, तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो कंपनी आपको ही क्यों ले? एंड दैट इज वेयर योर एकेडमिक ब्रिलियंस विल कम इनटू पिक्चर, and rank at professional level is going to add feathers to your academic brilliance. So it is always advisable to go for both module of CS professional in one shot in June. Clear? अब देखो हमारा बैच चालू होगा 10 सितंबर से। जनरली आई स्टार्ट द बैच ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, बट सो 10 सितंबर के आसपास अपना बैच चालू हो जाएगा, एंड द बैच कंप्लीशन इज गोइंग टू बी 31 मार्च। दो मैंने 31 मार्च बोला है, बट मेजरली the target which I have given to the team is 15th 20th मार्च तक अपना पोर्शन खत्म कर दिया जाएगा, एंड देन लेक्चर्स विल बी ऑन ऑल 7 days। एंड हमारी जो लेक्चर की प्लानिंग है कि 4 वीकडेज में आपके लेक्चर 4 to 9 होंगे, 2 वीकडेज में आपके लेक्चर मॉर्निंग में होंगे, बिकॉज अगेन दैट डिपेंड अपॉन बैच टू बैच, बिकॉज करेंटली आई टेल यू इन बोरीवली बैच वी हैव ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सो दे टोल्ड मी कि सर हमारा पूरा बैच ना मॉर्निंग में कर दो, बिकॉज दैट इज वेयर वी गेट मोर टाइम फॉर आवर प्रिपरेशन। सो इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन एट मोलुंड a lot of students are undergraduate, so they said कि सर हमारा कॉलेज कमिटमेंट होता है, तो keep 2 days morning only and 4 days weekend. So it's purely depend upon batch to batch, depend upon what students are asking for. But ये हमारी initial planning है, and vacations में and holidays में and Sundays को we keep the flexible timing, majorly morning में होते हैं। Now आपको complete portion का रिकॉर्डेड बैकअप लेक्चर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अब इस बार ना हमने थोड़ा इसको एडवांस कर दिया है। अभी तक हम लोग इसको मोबाइल एप्लीकेशन पे देखते थे, जो हमारे एग्जिस्टिंग CS जिन्होंने हमारे संग CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन लैपटॉप ऑल्सो। सो वी आर डेवलपिंग आवर ERP सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम, एंड प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 7 to 10 days इट इज गोइंग टू बी ऑन लाइव। सारे पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस कर दिया गया है, काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है, सो दैट कि हम बच्चे को एक काफ़ी अच्छी वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकें, एंड दैट इज नाउ आई टेल यू व्हाट इज द थिंग वी हैव इम्प्रूव्ड अपॉन। हमने ना 24/7 डाउट सॉल्विंग कर दिया उसमें। मतलब आप रात में 2 बजे पढ़ाई कर रहे हो और आपको डाउट आ गया, तो अब आप उसमें तो फैकल्टी को कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते, दो एट प्रोविंग्स फैकल्टीज आर एक्सट्रीमली अप्रोचेबल, बट आप रात में 2 बजे तो कॉल नहीं करोगे ना अभिषेक सर को, तो आप इमीडिएटली ना अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आप अपना डाउट वॉइस मैसेज या टाइप करके डाल दो, एंड वो डाउट इमीडिएटली फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा, एंड विद इन 48 आवर्स आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। दैट इज वन ऑफ द एरिया। सेकेंड, आप जब क्लास में आओगे तो आपकी अटेंडेंस ना पेपर शीट पे नहीं होगा, आप जब क्लास में आओगे तो आपको अपनी अटेंडेंस को स्कैन करना होगा, दोज आर बेसिकली फॉर फेस टू फेस। जब आप क्लास में आओगे तो भी आपको स्कैन करना, और क्लास से जब निकलोगे तो भी आपको स्कैन करना है, जिससे कि आपका इन एंड आउट टाइम मालूम पड़े, एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी पूरी एक अटेंडेंस शीट क्रिएट की जाएगी, जो कि आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रिसाइसली उनको भी मालूम पड़े कि बच्चा क्या कर रहा है, आपको भी मालूम पड़े कि आप अटेंडेंस कितने रेगुलर हो क्लास में। सो वी आर वर्किंग अपॉन अ लॉट ऑफ बेटर वर्जन, जिससे कि अच्छा आपके जो टेस्ट सीरीज है, अब हम लोग जो टेस्ट लेते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ टेस्ट नहीं लेते, ये मैं आगे ही बताने वाला हूँ। हम लोग आपको एक नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें आपके हर क्वेश्चन को डेडिकेटेड टीम ऑफ CA and CS इज गोइंग टू चेक योर पेपर, एंड आपको ना नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें आपको हर क्वेश्चन में आपने क्या गलती किया है, उसको कैसे आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए, ये भी लिखा होता है। सो ऑब्जेक्टिव ये, एंड बेस्ड ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस
and based on your attendance we are going to prepare a complete progress chart of yours, and based on your progress chart we'll be able to understand कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा जा रहे हो, किस में कम हो रहा है, और जहां कम हो रहा है वहां पे आपकी प्रोफेशनल मेंटरशिप कराई जाती है बाय प्रोफेशनल मेंटर्स। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हमको वन शॉट में CS प्रोफेशनल पास होना है। क्लियर? नाउ टाइम टेबल विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट ऑन वीकली बेसिस। हमारा वीक चालू होता है मंडे टू संडे एंड टाइम टेबल फ्राइडे सैटरडे तक आ जाता है। अभी करेंटली ERP प्रोसेस द implementation is going on, that's where we are announcing the timetable, but once by the time your batch will start entire things will be sorted. Clear? Now live at home batch का planning exactly same है, because live at home batch face to face की planning के साथ ही होता है। मतलब live at home batch को भी completely weekly timetable दिया जाएगा, उनका अटेंडेंस मार्क किया जाएगा, उनका प्रोग्रेस चार्ट बनेगा, उनका नो योर मिस्टेक रिपोर्ट होगा। मतलब आपको एग्जैक्टली सेम थिंग्स मिलने वाले हैं जो फेस टू फेस बच्चों को मिल रही है, विच मीन्स दैट इवन इफ यू आर सिटिंग नॉट इन बॉम्बे बट एनी अदर ज्योग्राफी अक्रॉस इंडिया यू आर गोइंग टू गेट द सेम बेनिफिट, सेम वैल्यू एडेड सर्विसेज विच फेस टू फेस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अगर मान लो फेस टू फेस का कोई बच्चा है ना और वो किसी दिन lecture नहीं आ पाया due to one or the other reason, so the student can always take the login ID from us and can attend online lecture, but live at home student cannot switch to face option. That is the only thing, because reason क्या है? reason ये है कि हमारा ना attendance system अलग है। तो face to face का attendance scanning से होता है, online बच्चों की attendance सिर्फ हमारे staff लेता है। So they go to the login, they make the they enter the page and then they do the attendance mark. So that is where, and we want to keep a complete track of the student कि बच्चे की progress कैसी जा रही है। इसलिए face to face student may go on few exceptional days on online session, but online student cannot come for face to face. That's the only thing. And again the recorded backup lecture will be provided till the last date of examination on your mobile application. अभी अब यहाँ पे ना recorded batch में now what is being said that we have a Google Drive. अच्छा, अब ये Google Drive जो है ना, ये कोई हमने पुरानी रिकॉर्डिंग करके नहीं रखी है, ये आपका because it's a new portion, your June 24 is going to be the first attempt, तो आपको ना जो डेली लेक्चर्स होंगे उसकी आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है एंड उसको इमीडिएटली एडिट किया जाता है एंड दैट लेक्चर इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू। क्लियर? सो इट इज नॉट एनी आउटडेटेड रिकॉर्डिंग, इट इज अ फ्रेश रिकॉर्डिंग ऑफ अ फ्रेश बैच, एंड देन वी नॉट ओनली गिव यू the recorded lecture, we also give you a complete study plan कि आपको पढ़ना कैसे है। But I tell you, recorded batch में ना तभी जाना चाहिए जब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सको, बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते तो रिकॉर्डेड बैच में बच्चों को तकलीफ ही होती है। मतलब क्या है? आई टेल यू, देखो आपको ना हम कंप्लीट स्टडी प्लान देंगे कि आपको डेली कितने लेक्चर्स देखने हैं, कितने आवर्स लेक्चर देखने हैं, एवरीथिंग सब बता देंगे। बट अगर आपने उसको नहीं देखा ना तो देन इट कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम। आई गिव एन एग्जांपल, हमारे एग्जीक्यूटिव में भी रिकॉर्डेड बैच होता है, कंपनी लॉ सब्जेक्ट में 106 लेक्चर्स है। ओके, इन फॉर जून एग्जामिनेशन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट नाउ हु वाज कॉलिंग मी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे सेइंग दैट कि सर 103 लेक्चर्स में से मैंने अराउंड कुछ 12 लेक्चर ही देखे हैं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, और गिविंग वन ऑफ द अदर रीजन अब मैं इतने सारे 90 लेक्चर जो बचे हो कैसे देखूं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके देख लूं। अब बच्चों आप एक चीज बताओ, जितने लोग मेरे से पढ़ चुके हैं दे नो कि हमारा कंपनी लॉ सेबी का नोट्स किस तरीके से होता है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट, देन वी हैव एन एग्जांपल फॉर एवरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट फॉर एवरी टॉपिक वी हैव एन एग्जांपल। अब बच्चा स्पीड ऑप्शन करके क्या ही समझेगा। सो ये ना रिकॉर्डेड बैच उनके लिए बेनिफिशियल है, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल और दोज हु हैव सम अदर कमिटमेंट एंड हु कैन नॉट, और दोज हु हैव इंटरनेट प्रॉब्लम। Otherwise, it is always advisable to go for face-to-face batch or live at home. One more very important thing, see पहले क्या होता था ना कि हम लोग जब face-to-face बच्चों को और live at home बच्चों को जब हम लोग बैकअप लेक्चर देते थे तब उसको डेट के हिसाब से देते थे। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट है तो ड्राफ्टिंग के कुछ अराउंड 80 लेक्चर्स होंगे ना, तो डेट के हिसाब से वो 80 लेक्चर्स होते थे। अब बच्चों को ना इसमें एक तकलीफ होती थी कि सर अगर मान लीजिए मेरे को ना सिर्फ कंपनीज एक्ट जो चैप्टर है उसके ड्राफ्ट कर देखना है तो मेरे लिए ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैक करना कि भाई मैं कैसे देखूं। तो हमने उस प्रॉब्लम को समझा एंड अंडर द न्यू ERP सिस्टम हमने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब आप जब उस सब्जेक्ट पे जाओगे ना बैकअप लेक्चर देखने, तो जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे।
ओके, इट विल नॉट कम कंप्लीट लेक्चर्स की लिस्ट नहीं आएगी, चैप्टर्स खुल जाएंगे। मान लो ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में 11 चैप्टर्स हैं, तो 11 बॉक्सेस आपको दिखेंगे, आपको जिस चैप्टर का बैकअप देखना है उस पर क्लिक करो, उस चैप्टर का बैकअप उसके अंदर दिया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे का टाइम बचे और बच्चे की एफिशिएंसी बढ़े। क्लियर? सो प्रोविंग्स का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो हर एक काम किया जाए जिससे कि बच्चा एक्सीलेंस की तरफ जाए और रैंक लेके आए। क्लियर? और वन शॉट पास हो। अब देखो, नाउ आवर स्टडी मटेरियल, नाउ आई टेल यू दैट आवर स्टडी मटेरियल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर फ्यू सब्जेक्ट जो मॉड्यूल में काफी अच्छे दिए हैं, अदरवाइज आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एंड उस स्टडी मटेरियल में नॉट ओनली द एंटायर मॉड्यूल बीइंग कवर बट आल्सो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये तो अपना पहला अटेम्प्ट है, एब्सोल्युटली फाइन, बट कॉर्पोरेट रिसर्चिंग फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ सब्जेक्ट, तो वो पहले भी तो क्वेश्चन में था ना। सो रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड विल आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड, सो एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड। बस वही आपका गीता, कुरान, बाइबल जो समझना है समझो, आपको उतना ही पढ़ना है। और मॉड्यूल से जो आपको पढ़ना है वो भी आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि आपको ये टॉपिक मॉड्यूल से पढ़ना है, जबकि आपको क्लास में पढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा few of the students have an habit of reading module which is a very good habit, so will guide you कि आप मॉड्यूल से पहले नोट्स पढ़ना, एंड नोट्स पढ़ने के बाद आपका पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। उसके बाद आप एक मॉड्यूल को ग्लांस कर लेना सो दैट यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने सब कुछ कवर कर लिया है। क्लियर? ये स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में दिया जाएगा। सो जितने लोग फेस टू फेस में ज्वाइन होते हैं उनको तो बैच सब्जेक्ट चालू होने से पहले ही, लेक्चर चालू होने से पहले आपको मिल जाएगा। एंड जितने लाइव ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं हमको या रिकॉर्डेड, उनको स्टडी मटेरियल उनके घर पे डिस्पैच हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब हमने आपको पढ़ा दिया, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी टीम हैव टॉट यू, बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल बीइंग गिवन टू यू, बेस्ट ऑफ द सिस्टम सपोर्ट हैव बीन गिवन, बट आपको समझा कि नहीं समझा, एंड इसके लिए टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब हमने टेस्ट सीरीज में क्या चेंज किया ये देखिए। आपके बैच चालू होने के 3 हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, तो मतलब हमारा बैच चालू हो रहा है से ऑन 10th of September, so our test series is going to start say from October start। अच्छा, हम लोग सिर्फ टेस्ट नहीं लेते, हम लोग ना आपको टेस्ट के साथ नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देते हैं। आपका पूरा पेपर चेक किया जाता है, आपको मार्क्स एलोकेट होते हैं और आपको ये मालूम पड़ता है कि आपने क्वेश्चन में क्या गलती किया, एंड देन कंसर्न फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट पेपर इन क्लास। इसके अलावा अच्छा, अब ये ना एवरी संडे को टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना के आपका टेस्ट देते हैं। बट अब हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, हमने ना एक फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अब ये क्या है, हमने मान लो एक चैप्टर पढ़ाया, आपको वो एक चैप्टर ना आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और 1 वीक के बाद ना आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे उस चैप्टर का, सिर्फ अकेले उस चैप्टर का एक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, जो आपको 7 दिन के अंदर कभी भी लिखना है, एंड दैट यू हैव टू सबमिट आफ्टर राइटिंग। एंड मैं इतनी ईमानदारी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको चीट नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे एफर्ट आपके लिए लिए जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे का देखो, संडे को आपका 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन में टेस्ट होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू हैव अ फ्लेक्सी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जिसमें आप हर चैप्टर का टेस्ट दोगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आपकी इतनी राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाए कि जब आप मेन एग्जाम देने जाओ ना, तो थिंग्स बिकम अ केक वॉक फॉर यू। क्लियर? एंड देन this flexi chapter wise test series will be as I said that पूरे 1 वीक के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। आप कभी भी उसको लिख के आप अपलोड कर देना, एंड देन द आंसर, द डिटेल्ड आंसर एंड नो योर मिस्टेक रिपोर्ट, ऑल दोस थिंग विल फॉलो द सेम। क्लियर? देन वी हैव अ प्रीलिम्स। अच्छा, हमने आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले लिया, हमने फ्लेक्सी टेस्ट भी ले लिया, इसके बाद आपके पूरे पोर्शन का प्रीलिम्स होगा। नाउ प्रीलिम्स विल बी इन द मंथ ऑफ मे, एंड देन अगेन ये पूरे सब्जेक्ट का होगा इन लाइन ऑफ ICSI रिक्वायरमेंट, एंड देन आपको वापस नो योर मिस्टेक रिपोर्ट मिलेगा, डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा फ्रॉम द कंसर्न फैकल्टी, एंड इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं विच हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट एग्जामिनेशन, दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू। इसके अलावा अब देखो, डाउट सॉल्विंग जो है ना, हमारे फेस टू फेस जो बच्चे हैं, जो हमारे लाइव एट होम में जो बच्चे हैं, वो तो डाउट क्लास में ही पूछ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड स्टूडेंट, बिकॉज हमारे लिए तो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का करियर इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वेयर व्हाट वी डू, वी हैव अ
डाउट सॉल्विंग, सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन। एंड ये सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशन में हम रिकॉर्डेड बच्चों को एक डेट बताते हैं कि भाई इस तारीख को आपके इतने चैप्टर्स का डाउट डिस्कस किया जाएगा, एंड उस दिन पे बच्चा अपने सारे डाउट डिस्कस करता है। लेकिन याद रखना ये डाउट सॉल्विंग सेशन आपके एग्जाम के लास्ट 2.5 मंथ्स पहले होते हैं, बिकॉज गूगल ड्राइव बच्चा कभी भी परचेज करता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बट वी वांट टू कैटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो लास्ट 2 मंथ्स में आपके ये पूरे डाउट सॉल्विंग किए जाते हैं। क्लियर? देन अदर वैल्यूएडेड सर्विसेज, अब ये क्या है? सो वी हैव अ एबीसी एनालिसिस। आई बिलीव आप लोगों ने एबीसी एनालिसिस देखा होगा। इसमें हम लोग हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर वाइज एलोकेशन करते हैं बेस्ड ऑन पास आईसीएसआई एग्जाम। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज कैटेगरी ए चैप्टर, जो एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड कैटेगरी बी चैप्टर, एंड जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड कैटेगरी सी चैप्टर। बट अगेन स्टूडेंट्स याद रखना, ये एबीसी एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपरेशन, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिविजन। लेकिन कभी भी गलती से भी जस्ट बिकॉज अ पर्टिकुलर चैप्टर इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कैटेगरी सी चैप्टर उसको छोड़ मत देना, बिकॉज ICSI एग्जाम इज एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल। ये आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि a chapter which may not have been asked in past may ask substantially in the next examination. So it is something, unpredictability is there, but this ABC is going to help you in your preparation and revision. Then we have an amendment session. देखो अब आप लोग को जो notes मिलेगा ना, our batch is going to start from 10th of September, तो आपको जो notes मिलेंगे वो as on 1st September तक updated है। लेकिन जून एग्जामिनेशन के लिए नवंबर तक के अमेंडमेंट आने वाले हैं, तो अगले 3 महीने में अगर कोई मेजर अमेंडमेंट होता है तो वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट सेशन फॉर द सेम। एंड बिफोर एवरी एग्जाम प्रोविंस maintain the discipline of providing the amendment session with respect to that all those amendment which is applicable for that particular attempt. Then we have a answering technique. देखो आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, which means that you know the answering technique, but again we are going to guide you that आपको प्रोफेशनल लेवल पे आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करना है so that you can get the maximum of the marks. And then we have a learning guidance. अभी जो लर्निंग गाइडेंस है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम बच्चे की जो टेस्ट सीरीज है वो हम लर्निंग गाइडेंस से अलाइन कर देते हैं कि भाई बच्चा उतना पढ़ता है। चलिए एंड आई टेल यू, आपने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर्ली दे दिया ना बच्चों, तो आप ऐसे ही क्लियर कर जाओगे। क्यों? क्योंकि पूरा टेस्ट सीरीज में आपके पूरे पोर्शन का टेस्ट होता है, विच मीन दैट आपका एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाता। आपने सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लिया तो भी आपकी सक्सेस एश्योर्ड है। क्लियर? मतलब अगला 6 to 8 मंथ्स आपके ऊपर काफी एफर्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आप 1 शॉट में CS प्रोफेशनल क्लियर। नाउ आई टेल यू, इतने एफर्ट के बाद हमारा रिजल्ट कैसा आता है। नाउ जब मैंने प्रोविंस चालू किया था ना, तो दिसंबर 21 वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, एंड बिकॉज जून 21 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ था ऑन अकाउंट ऑफ पैंडेमिक, एंड सबसे लेट हमने CSET चालू किया था, दैट इज वाज जनवरी 22 वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। In the very first attempt, Nihar got 166, Isha got 155, 151, and Zobia got 154. Then in May 22, Anubhav got 172 out of 200. Then in July 22, these are our star performers who got 150 and above in their respective attempt. And ICSI का July 22 में passing result was around 68% and Province का was around 88%. Then in November 22, these are our star performer who got 150 and above. And institute का passing was around 68% and Province passing was around 91%. And then in January CSET we had very small batch, because generally CSET ना अब जो major batch बनता है वो July and November बनता है, because graduates are no longer required to give CSET. So we had a small batch of approximately around 23 students and we had 100% passing result, which is a magical number for any classes. And then in May, now Raina got 154 at CSET, and इस बार July 23 में we have these many students who got 150 and above, and institute passing in July 2023 CSET was around 70%, 69.7, and at Province we have around 95% passing result. अब it's not the case that we are getting rank only at or getting the best of the result only at CSET level. We are getting at all 3 level. So in December 21, in the very first attempt, we have Shubham who got all India 3rd rank, and in
July 2020, in June 2023, Saloni got AIR second at CS executive level. And with respect to Saloni, now Saloni has joined us for module 2. She has done module 1 from some other class, got a very bad experience, and then she joined us for module 2, and she missed one attempt also, and then I insisted कि नहीं सलोनी अपने को दोनों ग्रुप साथ में ही देना है. एंड देन बच्चे ने बहुत मेहनत किया, जेन्युइनली बहुत मेहनत किया, अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, पास एग्जाम पेपर सॉल्विंग बहुत किया. मतलब आई स्टिल रिमेंबर मुलुंड में हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के उसके पेपर वो लिख के लाती थी. आई यूज्ड टू चेक ऑल दोस थिंग. 8:30 लेक्चर खत्म होता था, तो 8:30 से लेके 9:30 9:45 तक वी यूज्ड टू डू ऑल दिस पेपर चेकिंग, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग. एंड जब बच्चे का रिजल्ट आता है ना, एंड बच्चे को एक सक्सेस मिलती है, तो खुशी बच्चे से ज़्यादा मेरे को लगता है टीचर्स को ही होती है. सो आई एम जनरली वेरी हैप्पी विद रिस्पेक्ट टू सलोनी. एंड देन at professional, we have Neelam who got AIR 5, Bhavika who got AIR 6, and in the last 1 year, in the very first year, we have the highest number of CS qualified across Bombay. And इस बार भी in the last 1 year, because we generally do a consolidation on a year-to-year basis, so December 21, June 22 में we had the highest number of CS qualified across Bombay. In December 22 and June 23, we again had the highest number of CS qualified across Bombay. More than 35 students have already cleared, and we are consolidating all the data and is going to announce very soon. Now in June 2023, now this is again is a very important achievement made by Suhani. Now Suhani Bafna, now age 19 years, imagine करो बच्चों, बच्चे की एज 19 years है, फर्स्ट अटेम्प्ट में CS प्रोफेशनल के ऑल एग्जाम क्लियर. ये बच्चा अभी ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में गया है, क्लियर. इसने अभी तक 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, 2nd ईयर ग्रेजुएशन खत्म करके 3rd ईयर में गया है, एंड इसका CS कंप्लीट हो गया. नाउ दिस इज समथिंग, इज अ मैजिकल मोमेंट. नाउ एंड आई टेल यू, जिस दिन रिजल्ट आया मैंने सुहानी को फोन किया, एंड बच्चा रो रहा था. मैं कह रहा क्या हो गया तुमको? तो बोली सर मेरी रैंक नहीं है. मैं कह रहा छोड़ो रैंक, तू देख तूने क्या अचीव किया. बच्चा 19 ईयर्स की एज में आप CS क्वालिफाइड हो गए, और ये आप भी कर सकते हो. 1 शॉट में हम पूरा CS प्रोफेशनल क्लियर कर सकते हैं. सो द रिजल्ट ऑफ सुहानी इज नॉट लेस देन AIR फॉर मी. अब ये मैजिकल रिजल्ट हमको भी लाना है. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द फीस स्ट्रक्चर, नाउ CS प्रोफेशनल की जो फीस स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू द फेस टू फेस, विद रिस्पेक्ट टू लाइव एट होम, एंड विद रिस्पेक्ट टू गूगल ड्राइव, नाउ हमारी फीस स्ट्रक्चर है क्या? सो फॉर बोथ ग्रुप्स our fees is 32,999, and for group 1 and group 2 individually it is 19,999 and 13,999. Installment facility is available for face-to-face students as well as for live at home. It is not available for Google Drive student. But जो हमारे in-house बच्चे हैं जिन्होंने executive हमारे साथ किया था, they will get a benefit of loyalty discount for 2,000 rupees for both groups and 1,000 rupees for one group. Clear? अब रैंकर्स के लिए we have a very special fee structure. तो जो भी AIR 1 2 3 हैं, उनके दोनों ग्रुप की फीस जो है वो 4,999 है. जो AIR 4 to 10 है, उनके दोनों ग्रुप की फीस जो है वो 10,999 and 10,999, एंड जो AIR 11 से 25 है, their fees for both the groups is 15,999. एंड यहाँ पे ये जो स्पेशल फीस स्ट्रक्चर रैंकर्स के लिए है, दैट विल बी अवेलेबल only for those rankers who are taking admission with us for both the groups. And what they have to submit while taking the admission, they just need to submit the rank list highlighting their name just for our record purpose. Clear? अब a very important thing, देखो what I have realized ना कि students का ना एक ग्रुप बन जाता है basically, and they always like to be a part of that group. We really appreciate this part. So we have come out with a group discount also, कि अगर बच्चे का ग्रुप जो है वो 2 से 5 बच्चे का अगर ग्रुप है, so they will get, every student will get a discount of 1,000 rupees each. If the student is having a group size of 6 to 10 student, every student will get a discount of 2,000 rupees each. इस तरीके से जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बेनिफिट हर बच्चे को मिलेगा. बिकॉज देखो प्रोफेशनल लेवल पे ना, what is very important for me is that I want to give maximum benefit to the student without making the organization in loss, of course,
but I want to give maximum benefit to the students. So if the group size is big, it is very easy for me to communicate the same to the management that this is something that the benefit is going to be provided. अब यहाँ अपने आपको करना क्या है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप एक talk with all the students who have cleared CS executive, make a group precisely and share this entire presentation with them so that they can understand who are the faculties, what is our approach, everything. And then just one person be the group leader, create a group and then send the entire group details to us. जो भी नाम आप ग्रुप में डालोगे बस वही हमारे साइड से फाइनल होगा. वी डोंट नीदर ऐड एनीवन नॉट डिलीट एनीवन एंड रेस्पेक्टिव बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू. क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद there can be a possibility that if you can understand, we have provided a lot of benefit basically, and इसके बाद भी if you inquire in some competition, they may say कि अच्छा Province is charging this much amount, so we'll charge 2,000 rupees less, 3,000 rupees less, very much possible. Clear? So my humble request is save your career, not the fees. देखो, आप जब कोई भी classes decide करो ना join करने के लिए, fees is not the criteria. Actually criteria 3 होने चाहिए. पहला, उस क्लासेस में कौन पढ़ाएगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, दैट थिंग हैव टू बी सीन. अब मतलब सिंपल वर्ड्स में, अगर जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, देन इट्स वेरी डाउटफुल दैट दे कैन गिव यू दैट वैल्यू एडिशन. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी दैट हु इज गोइंग टू टीच यू. सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि आपके ऊपर कितनी मेहनत होने वाली है, आपके लिए फैकल्टी कितनी एक्सेसिबल है, आपके किस तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, आपके ऊपर ओवरऑल क्या डेवलपमेंट होने वाला है. एंड थर्ड इज द रिजल्ट. एंड सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर नॉट द फीस. 1,000-2,000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ यू डोंट गेट द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी एक्सपीरियंस, द बेस्ट ऑफ द टीचिंग टीम, द लॉस इज गोइंग टू बी वेरी हाई. आप किसी भी क्लास में जाके पूछो, चेक विद देम कि क्या उनके पास ऐसा कोई बंदा है जो सुप्रीम कोर्ट में AOR है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यू विल गेट द आंसर. दे मे से कि नहीं इन सब की जरूरत नहीं है, बट ये आप भी जानते हो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ रिसोर्स लाइक व्हाट वी हैव. क्लियर? सो टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट, इज द लास्ट लेवल एंड इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. क्लियर? नाउ दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. सो वी हैव अ ब्रांच एट बोरीवली, Dadar and Mulund, and this is the contact detail being given, and now the floor is open for your question. Okay, so very important question being asked कि सर ये बैकअप लेक्चर हमको कब मिलेंगे. Now I tell you, आपको बैकअप लेक्चर मिलेगा within 24 hours of the lecture. मतलब एक्चुअली सेम डे ही हो जाता है, बट ये बैकअप लेक्चर जो होता है ना, क्लाउड में स्टोर होता है और क्लाउड से उनको अपलोड एंड डाउनलोड करना होता है. सो व्हाट वी टेल आवर स्टूडेंट दैट विदिन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा, बट ऑन द सेम डे ही हो जाता है. क्लियर? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर हमारा बैच कब कंप्लीट होगा. एज आई सेड इन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो दैट आपका बैच की जो कमिटेड डेट है 31st ऑफ मार्च है, बट अराउंड 20th मार्च तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा. बट उसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, और हमारा प्रीलिम्स होगा मंथ ऑफ मे में, 1st मे तक आपका प्रीलिम्स चालू हो जाएगा. अब हमारा उसके बीच में हम क्या करते हैं ये समझो, हम आपको ना 1 महीने का पढ़ने का टाइम देते हैं. क्लियर? तो आपका 20th मार्च तक पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो 20th अप्रैल तक आपको पूरा पढ़ने का टाइम दिया जाएगा. और फिर लास्ट 10 दिन जो होता है ना, वो सब्जेक्ट वाइज आपका रिवीजन होता है. ओके, फॉर एग्जांपल इन अ सब्जेक्ट लाइक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें 2 दिन रिवीजन आपके होंगे. हर सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होगा, एंड रिवीजन के बाद फिर आपका प्रीलिम्स चालू होगा. तो मंथ ऑफ अप्रैल इज अ रिवीजन मंथ, एंड मंथ ऑफ मे इज अ एग्जाम प्रीलिम्स, एंड देन जून में अपने को मेन एग्जाम देना है. ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप मेन एग्जाम देने जाओ, उससे पहले आपका हर एक डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए, उससे पहले आपके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो जाने चाहिए, वीकली टेस्ट सीरीज होना चाहिए, एंड प्रीलिम्स भी हो जाना चाहिए, सो दैट हम जब मेन एग्जाम देने जाएं, इट शुड बी अ केक वॉक फॉर यू, वेयर बाय आप एग्जाम दे के निकलो और आप बोलो कि आप CS बन गए. और ये होगा, और ये 100% होगा. क्लियर? ओके, सो वन मोर क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि सर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एज एन इलेक्टिव कैसा है. बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चा, बट हैविंग सेड दैट ये एक कंप्लीट ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसका आपके अदर सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, एंड बैंकिंग लॉस बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं, इंश्योरेंस लॉस बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं. सो आपके पास, एंड while you are selecting that subject, आप उसके सामने कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहे हो, कि आप क्या छोड़ रहे हो इस IBC.
सो इफ आई टेल यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जो एक बहुत ग्रोइंग एरिया ऑफ प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है वो है IBC एरिया, and that is where I would sincerely suggest that if you have to make a choice between IBC and banking and insurance, then go for IBC, क्योंकि IBC as a subject आप mandatory पढ़ने ही वाले हो इन योर मॉड्यूल 2। सो जब आप IBC का केस स्टडी करते हो ना, तो आप उसको प्रोविजन से रिलेट कर पाते हो, तो वो एक तरीके से आपका सब्जेक्ट सप्लीमेंट हो जाता है, विच मीन दैट आपको उसके ऊपर उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, और अपना एफर्ट अगर कहीं बच रहा है तो उसको बचाओ, सो दैट हम उस टाइम को, उस एनर्जी एफर्ट को रिवीजन की तरफ डाल सकें, राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ डाल सकें और रैंक टारगेट्स कर सकें। क्लियर? ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टॉलमेंट एंड फैसिलिटी एंड द ग्रुप डिस्काउंट, देखो आपका जो ग्रुप साइज होगा ना, उसके हिसाब से आपकी फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एंड जो आपका जो टोटल फीस होगा ना, आपको एडमिशन में 10,000 पे करना है, आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी वैसे ही रहेगा, जो आपकी जो अमाउंट है, जो लास्ट अमाउंट है, वो आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो यू कैन हैव द इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी एज वेल एज ग्रुप डिस्काउंट फैसिलिटी। क्लियर? सो thank you so much. I believe all the doubts have been addressed. So thank you so much all of you for giving your valuable time, and see you in the lectures very soon. Thank you.